Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're starting off with today is from May-June 2019. It's P6 variant 62, alternative to practicals. Let's start. Question number 1. A student is investigating momentums using balancing method. पहले हम अपनी drawing पे देखते हैं कि हमारे पास provided क्या है. ठीक है? We have a meter rule, we have a bench, we have two different masses P and Q on either side of the pivot. We have the length A, which is from the end of the pivot towards the center, जहाँ पर हमारे पास pivot placed है. And then we have B, which is from the middle of mass Q till the pivot. ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना कि मास के सेंटर से मेजरमेंट ली जा रही है लेंथ की या मास के एंड से. ठीक है? Okay. The student places the meter rule without the loads on the pivot and adjusts its position so that the meter rule is as near as possible to being balanced. मतलब कि मासेस प्लेस किए बगैर पहले उसने पिवट पे हमारे मीटर रूलर को सेट किया तो मोस्ट प्रॉबेबली वो एग्जैक्ट सेंटर विच इज़ 50 बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली इट्स अ मीटर रूल मतलब कि 1 मीटर उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं बेसिकली 50 सेंटीमीटर पे आई थिंक वो बैलेंस रहा होगा. शी कीप्स द रूल एट दिस पोजिशन ऑन द पिवट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. Explain briefly why this position on the pivot may not be exactly on the 50 centimeter mark. अब हाँ ये सही बात है कि एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि ये 50 सेंटीमीटर पे हो और अब इसके हमें रीजंस देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों नहीं है. बात ये है कि हमारे पास जो मीटर रोल है क्या पता उसका एंड है जो ये है दैट इज़ मोर हैवियर देन दिस एंड तो 50 पे रखने पे वो यूँ ऊपर की नीचे की तरफ यूँ टॉपल हो जाए. समझ आइए दिस इज़ ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ द मास इज़ इन द सेंटर. समझ आ रही है आपको? तो हम लिखते हैं कि मीटर रूलर माइट बी द मास ऑफ मीटर रूलर माइट बी एन इवन. ठीक है? मास ऑफ मैंने बहुत थिक ले लिया मैं इसको. मास ऑफ मीटर रूल माइट बी uneven. Therefore, हम लिखेंगे कि center of mass or the center of gravity is not in the center, is not at the center. जिस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहें, however you wish to express it. Next. She places the load P on the meter ruler so that the edge is the furthest from the pivot is exactly at the 10 centimeter mark of the ruler. देखें उसने P को ऐसे प्लेस किया ठीक है so that the edge that is the furthest from the pivot मतलब कि the edge that is the furthest from the pivot ये edge होगा जो pivot से furthest है P का is exactly at the 10 centimeter mark on the ruler. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर होगा हमारे पास 10 centimeters. She measures the distance A between this edge, जो obviously 10 centimeter पे, and the load of the load P and the pivot as shown in figure 1.1. ये हमें नजर आ रहा है कि ये 10 centimeter mark से pivot तक का measurement है A. She places the load Q on the meter ruler and adjusts the position of the load Q so that the meter ruler is as near as possible to being balanced. फिर Q रखा इस तरीके के वो balance हो. अब हमें ये हम बिल्कुल सर्टनटी सा नहीं कह सकते कि A और B एग्जैक्टली सेम है क्योंकि हमें पता नहीं है कि लोड P और Q के मासेस क्या हैं. ठीक है? She measures the distance P between the center of the load Q. ये मैं आपको पे भी दिखाया कि Q के सेंटर से मेजर की जा रही है P and the pivot as shown in figure 1.1. She repeats the procedure with the edge of the load P that is the furthest from the pivot is at 15, 20, 25 and 30 centimeter marks. All the readings are shown in the table. अब obviously अगर वो P है ठीक है हम बोल रहे हैं कि हम next लेंगे 15 पे या 20, 25, 30, 35 तो हम A को क्या करें A को कम करें मतलब कि ये मास करीब आ रहा है समझे ये यहाँ आ गया और Q अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है तो क्या होगा ये obviously नीचे बैठ जाएगा.
समझ आ रही है आपको? तो हमें Q को भी करीब लेकर आना पड़ेगा हमारे पिवट से। तो जैसे कि जैसे A में रिडक्शन होगी इसी तरह B में भी रिडक्शन होगी। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ये हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो तो हमें यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, उसमें भी एग्जैक्ट यही चीज़ दिखाई हुई है कि जैसे A रिड्यूस हो रहा है हमारे पास B भी रिड्यूस हो रहा है। You don't need to be a scientific genius in order to figure this out. But अगर आपको नहीं हो रहा, अगर आप obviously you're in exam stress, you don't think straight, आपको यहाँ पर ये टेबल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम obviously इसका ग्राफ बनाएंगे जिसमें भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नज़र आएगी। सो y एक्सिस पे हमारे पास है A, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। y एक्सिस में we have A in centimeters and x axis पे हमारे पास है B in centimeters. B in centimeters. Don't forget to write your unit. अब A की वैल्यूज हमारे पास है, हमें ये भी बोला हुआ है start both axes at the origin. ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमारे पास 0 से शुरू होगा। ओके, अब A हमारे पास है from 18 till 38. तो अगर हम इस तरह करें, मतलब हमें बेसिकली चाहिए from 10 to, या हम बोलें 15 to 40, ठीक है। तो लेट्स सी अगर हम इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, इट इज़ वर्किंग आउट, वी कैन डू दैट। या हम ये भी कर सकते हैं, अगर समझे हम करें 15, 30, 45, इसमें बहुत कम होगा क्योंकि हमारा स्केल 38 पे ख़त्म हो रहा है। तो मतलब बेसिकली सिर्फ इतने से प्रोपोर्शन में काम किया जाएगा तो आपका ये मार्क कटेगा क्योंकि आपको यू हैव टू यूज़ मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ। सो आई थिंक ये 10-20 वाला हमें सही चल रहा है इन टेंस। सो वी आर गोना डू दिस। सो वी हैव 10, वी हैव 20, वी हैव 30, वी हैव 40 एंड वी हैव 50। हम 5, 10 अगर करें तो फिर 5, 10, 15 ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 से शुरू हो रहा है। समझ आ रही है? ओके, फिर हमारे पास है y में हमारे पास है फ्रॉम 22 to 44। तो मतलब हमें बेसिकली 45 या 50 तक हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी हम यही कर लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब let's mark our points. I'm just going to use red. पहला पॉइंट है हमारे पास 38 at y and 44.5. So यहाँ पर 38 will be somewhere around here. This is exact 38. And we have 44.5. This is 44, I mean this is 40, ये 45 है हमारे पास, तो यहाँ पर around 44 होगा, 44.5, around 45. तो हम इसको यहाँ पर, you should use a ruler at this point. I am not going to, should I? No, I don't need to. So यहाँ पर हमारा पहला point बन गया, ठीक है। Next, we have 33 and 38.5. 33 and 38 यहाँ पर हमें पास होगा 38.5. So 33, 38 यहाँ है and this is 38.5. Next, 28 and 33.6. I do not like B key readings because it's in point. It's really annoying, but we have to do it. 28 and 33.6. 28 यहाँ होगा and, sorry, 28 and 33.6. 33 is somewhere here. So 28 and 33.6, it will be somewhere here. Next we have 23 and 27.2. 23, 27.2. So somewhere around here. Next we have 18 and 22. 18 यहाँ है and 22 यहाँ है. ये हमारे पास हमारी सारी readings आ गई. What we're gonna do? Make line of best fit. I'm gonna use my ruler here. And जितने points हो सके आप कोशिश करें take it together. ठीक है? सही? ये हमारे पास हो गया. Let's see what we're asked for next. Determine the gradient. Show clearly on the graph how you obtained this necessary information. ये देखें.
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बताना. यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल ऑन योर ग्राफ एंड इट हैज़ टू बी मोर देन हाफ योर ग्राफ. आप 2 पॉइंट्स चूज़ कर लें अपनी लाइन पे, कोई ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ पर टेबल में नहीं दिए गए. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ट्राई टू चूज़ एन ईजी पॉइंट, तो मैं ये पॉइंट चूज़ करूँगी पहले तो, क्योंकि एग्जैक्टली लाइन्स पे फिट आ रहा है दोनों लाइन्स पे, तो हमारे पास एक बहुत ही पॉइंट्स के बगैर नंबर होगा, डेसिमल में नहीं होगा. एंड देन आई विल गो विथ कोई ऐसा पॉइंट जो ईजी हो, ये रहा. ठीक है, आई एम वेरी लेजी, सो मैं आसान पॉइंट्स चूज़ करूँगी. तो इसके साथ फिर आप एक डैश्ड लाइन ड्रॉ करें जिसमें नज़र आ रहा है कि आपका कहाँ से आ रहा है. ठीक है, आई हेट दिस रूलर. ओके, ये हमारे पास डैश लाइन्स आ गई. यूजली ऐसे होता है हाइट ओवर रन, अगर आपको वो मेथड यूज़ करना है, बट आई ऑलवेज डू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो हमारे पास हम जी निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1. मैं ऐसे करती हूँ हमेशा. अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं पहले हम उसका लिखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ओवर हियर, इसका x है हमारे पास 50 और इसका y है हमारे पास अराउंड 41, 42, 43, 43, 50 एंड 43. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. दिस इज़ हमारा, विल जस्ट कॉल इट x1 एंड y1. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. इसका x है 10 और इसका y है हमारे पास अराउंड 7. दिस विल बी x2 एंड y2. सो y2 - y1 क्या होगा हमारे पास? 7 - 43 y2 - y1 अपॉन x2 - x1. x2 हमारे पास है 10 - 50. अगर आप सोच रहे हैं कि ऑपोजिट करने से कोई फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा. मैं उसको भी लिख देती हूँ. 43 - 7 एंड 50 - 10. अब इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं. 7 - 43 अपॉन 10 - 50. सॉरी, 10 - 5 लिख दिया मैंने. यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9. अगर हम इसका ऑपोजिट करें, ठीक है, विच इज़ 43 - 7 अपॉन 50 - 10, यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है 0.9. क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ की 43 में से अगर हम 7 निकालें तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव. यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव हैं, तो अगर नेगेटिव है दोनों जगह तो फिर क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव बनेगा. नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव गिव्स अस अ पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट है 0.9. ऑब्वियसली ग्रेडियंट की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप बस 0.9 ही लिखेंगे. नेक्स्ट, डिटर्मिन द y-intercept on the x-axis. This value is the value of b when a is equals to 0. मतलब कि जब a 0 होगा, मतलब जब हमारा a 0 किस तरीके से होगा, इस जब हमारा p यहाँ प्लेस होगा, p, that will make our a 0. तो इस पे हमारा फिर b की जो वैल्यू होगी ये हमें बता रहा है हमारा y-intercept. तो y-intercept जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, सॉरी x, हमसे इंटरसेप्ट मांगा हुआ है ऑन द x एक्सिस ऑफ द ग्राफ. ठीक है, हमसे इंटरसेप्ट मांगा हुआ है ऑन द x एक्सिस ऑफ द ग्राफ. तो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, हमारे पास मिल रहा है 2. ये हमें b की वैल्यू मिल रही है 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपकी लाइन, मैंने ऑलरेडी एक्सटेंडेड लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई थी, बट अगर आपकी लाइन समझो यहाँ एंड हो रही थी तो आप उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते, बट मैंने ऑलरेडी एक्सटेंडेड बनाई थी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया. 1D का आंसर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स. सो B will be 2 centimeters when A is equals to 0 centimeters. अब हमें बोला जा रहा है measure the width of the load P. अब आपके पास, अब क्योंकि मेरा obviously आपसे in relation, this is a very different scale as compared to how the paper will really be. So I'm just going to use a marking scheme. Marking scheme में हमारे पास width लिखी हुई है इसकी around 2.5 centimeters और 25 millimeters exact में देना है हमें. ठीक है, अगर समझो 26 millimeters भी होता ना आपको वो देना पड़ता, पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास exact 2.5 millimeters, हम राइट 2.5 centimeters और 25 millimeters ये हमारी width है.
Another student suggests that the value of the intercept C should be equal to half of the width, which is the W of the load P. State whether the results support the suggestion. Justify your answer by reference to the results. तो हम ये बात को obviously क्या करेंगे, disagree करेंगे, क्योंकि हमारा जो B है हमारे पास 2 आ रहा है, और अगर हम 2.5 सेंटीमीटर का आधा करें हमें 1.25 मिल रहा है. Am I wrong? No. 1.25 और 2 में बहुत फ़र्क है, ठीक है, काफ़ी फ़र्क है, उससे रूलर काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगा. तो हम बोलेंगे इनकरेक्ट. हम पहले अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है. डू नॉट, ये क्या हुआ, हाँ, हम लिखेंगे डू नॉट agree, ठीक है, and C is not half of the width of W. ठीक है. Justification हम अपना लिखेंगे, हम लिखेंगे C is 2 centimeters and width of W is 2.5. Half of 2.5 is 1.25 centimeters, which is not equal to 2. समझ आए? That's it. So just one practical reason why is it difficult to obtain accurate values for A and for B. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये आप याद कर लिया करें. जब भी कोई रूलर से आता है और मैं उस पर कोई मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट ये चीज़ आती हैं. पहले तो दिस ऑब्वियसली द लोड्स स्लिप ऑफ, ठीक है, पहला ये है लोड्स, ये लॉर्ड्स लिखते हैं मैंने, लोड्स स्लिप ऑफ, ठीक है. सेकेंड हमारे पास रीजन होता है इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द रीडिंग बिकॉज ऑफ द लोड, ठीक है. तो हम लिखेंगे लोड्स obscuring readings on the ruler या rule. जब I was in O levels ना, इस तरीके के, क्योंकि जब आपके पास ADB आता है उस पर हमेशा इस तरीके की, मैंने जैसे एक बुकलेट बनाई हुई थी, उसमें ऐसा मैं लिखती थी फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिलेटेड टू मीटर रूलर, और मैं ये सब लिख लेती थी, यू नो, प्रैक्टिकल रीजंस इस तरीके के. और जो आपके पास ऐसी भी चीज़ें आती हैं, समथिंग यूड कीप कांस्टेंट, समथिंग यू वोंट कीप कांस्टेंट, इस तरीके की चीज़ें कि आप लिस्ट बना लो, इट विल मेक योर लाइफ सो मच मोर ईजियर. ठीक है. एक और भी हमारे पास होता है पिवट नॉट शार्प इनफ, या तो फिर not staying in position. ठीक है, यहाँ पास काफ़ी reasons, 3 reasons काफ़ी हैं, हमें एक ही पूछा हुआ. Okay, so we're done with question 1. Now question 2. A student is investigating the rate of cooling of water under different conditions. अगर आप हमारा लास्ट वाला वो देखेंगे ना, क्या कहते हैं, वेरिएंस 61, you'll see कि इसमें हर एक्सपेरिमेंट इससे बहुत सिमिलर दिया हुआ है, बट डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं, बट एक्सपेरिमेंट के बेसिस काफ़ी सिमिलर हैं. So, a greater rate of cooling occurs if there's a greater change in temperature during the same periods of time. Figure 2.1 and figure 2.2 shows the apparatus used. Beaker A has a lid. Beaker B is on a mat made of the same material as the lid. तो A में हमारे पास lid है, ठीक, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि नजर आ जाए. A में हमारे पास, मैं इसको भी हटा देती हूँ, सही. A में हमारे पास लिड है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, और B में हमारे पास लिड नहीं है बट मैट है, एंड इट्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल दैट लिड इज मेड ऑफ. नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, अच्छा बस ये लिखा हुआ है, द मैट एंड द लिड हैव द सेम थिकनेस. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये. एंड दोनों में हमारे पास थर्मोमीटर लगे हुए हैं, दे आर अटैच्ड टू अ रिटॉर्ट स्टैंड. दोनों में हमारे पास ऑब्वियसली कोई लिक्विड है, आई एम थिंकिंग इट्स पानी. The thermometer in the figure 2.3 shows the room temperature at the beginning of the experiment. अब हमें room temperature निकालना है. मैं इसको वापस से बड़ा कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा. अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे 20 है और उसके बाद we have 25, 30, यहाँ पे बीच में हमारे पास 10 डायल्स हैं, मतलब कि यू नो एक एक करके बढ़ रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये 20, 21, 22 रुक रहा है. This is 22 degrees Celsius. Do not forget to write the unit. Next.
The student pours 200 centimeters of hot water into beaker A. He places the lid on the beaker and places the thermometer in the beaker. तो हमने 200 centimeter cubes of hot water, we poured it into beaker A, जिसमें हमारे पास lid लगी हुई है. He records the temperature theta of the hot water at time is equals to 0. He immediately starts the stop clock. He records the time and temperature readings every 30 seconds until he has six sets of readings. He repeats the procedure using beaker B. मतलब दोनों में इसने 200 centimeter cube of hot water, he added it, and time is equals to 0 पर उसने record किया और हर 30 seconds उसने temperature record किया. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर readings आ गई. पहले तो A, beaker A with lid, beaker B on a mat. हम इसकी पहले यूनिट्स लिख देते हैं. टाइम इज सेकेंड्स एंड थीटा इज, जो हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे ही होता है यूजुअली. Complete the column headings in table 2.1, 2.2. We've done that. Look carefully at the readings in table 2.1 and 2.2. अब हमें क्या बोला गया? Tick the box carefully to show your conclusion from the readings. फिर हम boxes को देख लेते हैं. ठीक है, पहले beaker A को देखते हैं. 0 में हमारे पास है टेम्परेचर 81 एंड 150 सेकेंड्स में हमारे पास है 76. आपको नज़र आ रहा है डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 81 to 80, 79, 78, 77, 76. बहुत हमारे पास मतलब कंटिन्यूस तरीके से डिक्रीज़ हुआ है. हर 30 सेकेंड्स में हमारे पास एग्जैक्ट 1 डिग्री डिक्रीज़ हुई है. यू नो विच आर वेरी गुड रिजल्ट्स. अब हम बी पे देखते हैं. वी आर 83, 82, 80, 79, 78, 77. इसमें भी हमारे पास 1 डिग्री से कम हुआ है, एक्सेप्ट फॉर लाइक व्हेन वी वेंट फ्रॉम 30 to 60 seconds, it went from 82 to 80 instead of 82 to 81. That's not a problem. बहुत constant और अच्छा डिक्रीज हुआ है हमारे पास. बहुत ही properly से directly proportional relationship show हो रहा है. Check the boxes to show your conclusion from the readings. The first box. The lid reduces the rate of cooling of water significantly more than the mat reduces the rate of cooling of water. That's incorrect. क्योंकि दोनों में same temperature drop आ रहा है. दोनों में temperature drop बहुत similar है, तो हम ये नहीं मानेंगे. Second, the mat reduces the rate of cooling of temperature significantly more than the lid reduces. Again, दोनों में बहुत similar है, so I don't think कि mat और उसमें कोई फ़र्क है lid में. Third, there is no significant difference between the lid and the mat in reducing the rate of cooling of water. We're going to agree with this one. Justify a conclusion by reference to the statements. हम बोलेंगे कि हम इसमें आपको कोड करना पड़ता है obviously. हम लिख सकते हैं both temperature drops by 1 degree every 30 seconds. e.g. example दें आप please. 81 to 80, 81 to 80 and 83 to 82 during the from 30 seconds to 60. ठीक है. Next, a student plans to repeat the experiment using the same apparatus and the same volume of water. State one change to the experiment of the procedure that will decrease the rate of cooling of water. अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि वाटर की जो कूलिंग है उसका रेट कम हो. हम ये बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करें. ठीक है, तो उससे और कम होगा, तो हमारा पहला ये होगा मोर इंसुलेशन. सेकंड, हम ये लिख सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा हायर हो, क्योंकि ऑब्वियसली हीट ट्रैवल्स फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन. तो अगर बाहर भी ज़्यादा हीट होगी तो वो इतना ट्रैवल नहीं करेगी बाहर. सो हायर रूम टेम्परेचर. तीसरा, हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पानी है जो बॉयल हो रहा है और एक पानी है जो हमारे पास है, समझें आई डोंट नो, लेट्स से एट 30 डिग्रीज़, जो 100 है उसका टेम्परेचर डिग्री 10 मिनट में आता हम जाएंगे ना, 100 हमारे पास जो ना 30 पे पहुंचा हुआ होगा और 50 30 पे पहुंचा हुआ होगा. तो हमारे पास जो 50 से 30 तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और 100 से 30 तक ड्रॉप हुआ, दोनों का ड्रॉप देखें कितना सिग्निफिकेंट है. मतलब कि पानी या जो भी है जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा उतना ज़्यादा उसका ड्रॉप होगा.
तो हम यही लिखेंगे स्टार्ट विद द स्टार्टिंग टेम्परेचर थोड़ा कम हो, ठीक है। स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर लोअर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप 1 प्रिकॉशन यू मस्ट टेक इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड एक्यूरेट रीडिंग्स। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब थर्मोमीटर होता है यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको परपेंडिकुलरली व्यू करें, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि आप उसको स्टर करें ताकि सारे वाटर का सब वाटर के हर एरिया के टेम्परेचर एग्जैक्ट हो। थर्मोमीटर बीटर को नहीं टच कर रहा हो, सिर्फ पानी को टच कर रहा हो। आई गिव यू 3 रीजंस। आई एम जस्ट गोना राइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन व्हिच इज परपेंडिकुलर viewing of thermometer. Next, state 2 variables that must be controlled in order to make the experiment a fair test. हम ये लिख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर कांस्टेंट हो दोनों का, या तो फिर सेम हो, सेम रूम टेम्परेचर, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं सेम मटेरियल ऑफ बीकर। समझे, एक बीकर का मटेरियल डिफरेंट हो, वो ज़्यादा हीट ले रहा हो, एक कम हीट ले रहा हो, ठीक है। हम लिख सकते हैं मास, और हालांकि हमें बोला हुआ है दोनों में सेम वॉल्यूम डाला है, बट फिर भी हम लिख दे देंगे अमाउंट ऑफ वाटर। हम ये भी लिख सकते हैं टोटल टाइम, या तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम हो तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी देखने में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू अ मेजरिंग सिलेंडर correctly to obtain an accurate view of the volume of the liquid. Take the box that gives the best description of how to read a measuring cylinder. आपको पता है कि आपको बिल्कुल perpendicularly व्यू करना पड़ता है। Perpendicular means to the right angle. So पहला, the line of the side should be along the scale. That's incorrect. The line of sight should be vertical. Absolutely incorrect. The line of sight should be at right angles to the scale. That is correct. Perpendicularly view करना मतलब to the right angle of the scale. And we're done with question 2. Question 3. A student is investigating electrical resistance. She uses the circuit shown in figure 3.1. Write down the readings shown on the meter in figure 3.2 and 3.3. ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पर पावर सप्लाई दिया हुआ है, वी हैव अ P विच इज़ अ रजिस्टर, ठीक है। ए हमारे पास एम्प मीटर दिया हुआ है, एल पे लैम्प दी भी है, और हमारे पास एक वोल्टेज दिया हुआ है अगेंस्ट रजिस्टर। तो पहले हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज आप देखें कि यहाँ पर 3 और 4 है, और 3 और 4 के बीच में हमारे पास 4 डायल्स हैं, मतलब 3.2, 3.6 नहीं 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर, मैं जूम कर लेती हूँ, 3.2, 3.4, 3.6, दिस इज 3.8। क्योंकि 4 डायल्स हैं तो ऑब्वियसली 2 2s में काउंट हो रहा होगा, ठीक है। हमारे पास 3.6 आ गया, मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है 3.6 volts. Do not forget to write your unit, it's very important. Next, current. ये हमारे पास 0.2 और 0.4 के एग्जैक्ट बीच में, तो ये ऑब्वियसली होगा 0.3। यहाँ लिख लेते हैं 0.3 amperes. Do not forget to write your unit, ठीक है। Next, calculate the resistance of the resistor using the equation R is equals to V upon I. अब हमारे पास वोल्टेज क्या थी, हमारे पास 3.6 और करंट क्या था 0.3, दोनों को डिवाइड कर हमारे पास आंसर आया 12 ohms. Again, do not forget to write the unit. I'm gonna say it again and again until सबके दिमाग में बात रट जाए, ठीक है। The student connects a voltmeter across the lamp L. पहले तो वो हमारे पास रेजिस्टर के आगे लगा हुआ था, अब हमने उसको लैम्प के आगे लगा दिया। अभी हमने रेजिस्टेंस हमने वोल्टेज निकाल ली, ऑब्वियसली करंट वही रहेगा विच इज़ 0.3 amperes. अब हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे 2.4 अपॉन 0.3, आंसर आ रहा है हमारे पास 8 ohms, मतलब कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लैम्प से ज़्यादा है। She replaces the resistor P with the resistor Q. उसने resistor P की जगह resistor Q लगा दिया, and उसमें क्या होगा,
कि हमारे पास वोल्टेज, ऑब्वियसली हमारे पास करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट दिया जा रहा है, बल्कि सॉरी वोल्टेज चेंज होगी. She records the potential difference across the resistor of the Q and the current which is I2 of the circuit. अब हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो ये हमारे पास आ रही है अराउंड 11.3. तो आप चाहें तो अगर आप 2 यूनिट्स में लिखना चाहें तो आप 11 लिख दें, वरना आप 11.3 लिख दें. I wouldn't suggest 11.29 बिकॉज उसमें पर ऑब्वियसली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ. आई वुडंट सजेस्ट, आप कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हमें मैक्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं. सो आई जस्ट गो विथ 11.3, ठीक है, ओम्स. इस वाले की रेजिस्टेंस हमारी पहली रेजिस्टर से कम है, उसकी 12 थी, इसकी 11.3 है. State whether results R1 and R3 suggest that resistor P and resistor Q have the same value of resistor within the limits of experimental accuracy. Justify your statement by reference to your results. अब हम क्या बोलेंगे कि आप ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट, हम बोलेंगे कि इट्स नॉट द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. हम लिखते हैं नॉट द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. हम लिखेंगे कि 12 ohms and 11, या आप 11 लिख दें, do not fall under limits of experimental accuracy. आप चाहें तो आप इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लिख दें कि सेम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस 11 and 11.3 आर वेरी क्लोज एंड फॉल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. आपकी मर्जी है. ऐसे कुछ होता है कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही आंसर लिख सकते हैं, आप डिफरेंट आंसर. The student connects the voltmeter across the lamp L. She records the potential difference across the lamp L. And she calculates the resistance of the lamp L. आप पहले भी देखें तो लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी. पहले भी लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज थी हमारे पास 2.4, अब हो गई 2.5. और रेजिस्टेंस पहले था 8, अब हमारे पास हो गया 8.1, बहुत करीब है. So she suggests that the change in resistance of the lamp is due to change in temperature of the lamp filament. Suggests an observation she could make to confirm that the temperature of the lamp filament changes. अब अगर आपको पता है कि टेम्परेचर तब होता है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी होगी लैम्प की, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि स्टेट एन ऑब्जर्वेशन दैट शी कुड मेक टू कन्फर्म दैट द टेम्परेचर ऑफ द लैम्प फिलामेंट चेंजेस. हमें पता है कि टेम्परेचर तब ज़्यादा होगा जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास ब्राइटनेस ज़्यादा होगी. हम ये लिखेंगे. आपको पता है ना कि बल्ब, why does it basically reflect light? Why does it throw out light? It's because of resistance. उसमें जो वायर होता है लैम्प के अंदर, हमारा जो बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन वायर होता है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. तो वो इतनी हाई होती है कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से बहुत टेम्परेचर होता है और इस तरह से इट एक्सपोज लाइट. सो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा हमारे पास लाइट इंटेंसिटी होती है, उतना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर रिलीज होता है, ठीक है. तो हम बोलेंगे brightness of lamp changes, ठीक है. Complete the circuit diagram in figure 3.4 to show that the two resistors in the lamps are all connected in parallel, ठीक है. तो हमें ये दिखाना है कि 2 resistors and lamp parallel में connected है, and the voltmeter is connected to measure the potential difference across the resistors and the lamp, ठीक है. तो हम ये कर सकते हैं. कैसे करें, चले आ जाओ. पहले हमें बताना है कि 2 रेजिस्टर्स एंड लैम्प पैरेलल में, 1 2 एंड यहाँ पे लैम्प. और ये मैंने गलत कर दी, कोई बात. एंड हमें उसके साथ हमें वोल्ट मीटर लगाना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स एंड द लैम्प. तो यहाँ हमारे पास वोल्ट मीटर आ गया इनके अक्रॉस, ठीक है.
State the name of the circuit component that you could add to the circuit you have drawn to control the current of the circuit. अब क्योंकि ये सब पैरेलल में तो इनको एग्जैक्ट उतनी ही वोल्टेज मिलेगी जो यहाँ आ रही है. यहाँ एक्स वोल्ट्स आ रहा था, यहाँ भी एक्स वोल्ट्स होगा, यहाँ भी एक्स वोल्ट्स होगा, यहाँ भी एक्स वोल्ट होगा, इसमें भी एक्स वोल्टेज ही दिखा रहा होगा क्योंकि सब पैरेलल में. तो एक ही चीज़ है जो अगर वोल्टेज सेम है तो करंट किस तरह चेंज होगी? थ्रू रेजिस्टेंस. V इज इक्वल्स टू आई आर. अब अगर V इज इक्वल्स टू आई आर, अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट बढ़ेगा, और जितना करंट उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली. तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हमें ऐसा रेजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस चेंज कर सके. तो हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टैट. ठीक है. एंड वी आर डन विद दैट क्वेश्चन. Start off with question 4. The student is investigating the relationship between the thickness of a converging, which is a convex lens, and its focal length. Figure 4.1 shows the cross-section of the converging lens. The focal length f of a lens can be calculated if u, the distance between the object and the lens, and v, the distance between the lens and the image, are known. The equation is equals to f is equals to uv upon u plus v. Plan an experiment to investigate the relationship between the thickness and the focal length f of the converging lens. You may add to figure 4.1 as a part of your answer. तो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारे पास हमारी कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंथ है, ठीक है, और उस पर साथ साथ हमारे पास उसकी ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास इसकी फोकल लेंथ दी हुई है. उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हमारे पास जो हमारी थिकनेस दी हुई है. हम इसको और हमारे फोकल लेंथ को मेजर इनका दोनों का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो हम थिकनेस एंड फोकल लेंथ का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या क्या हो रहा है, या कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. वी आर गिवन एपरेटसेस जिससे हम बता सकें कि फोकल लेंथ और थिकनेस का क्या डिफरेंस है. वैसे तो आपको ये बात एक्चुअली पता होनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ कि आपकी थिकनेस जितनी ज़्यादा हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा थिकनेस हो उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा आपकी लेंस की पावर होगी. मतलब एक सेकंड, पावर ऑफ लेंस मतलब उतना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा लाइट को. तो फिर उस पर क्या होगा, उतनी कम आपकी फोकल लेंथ होगी. ठीक है, हाँ, फोकल लेंथ, ठीक है. तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. जितनी कम फोकल लेंथ हुई या जितनी ज़्यादा थिकनेस हुई उतनी ज़्यादा हमारी पावर की लेंस की पावर होगी, ठीक है. लेकिन हमें ये ऑब्वियसली प्रूव करना है. अब हमें एपरेटसेस दिए हुए हैं. वी आर गिवन एन illuminated object, a selection of lenses of different thicknesses and lens holder. We're given a screen, we're given meter rule, we're given a 30 centimeter ruler, we're given two rectangular wooden blocks with the longest sides longer than the diameter of the lens. In your plan, you should draw a diagram to show the arrangement of the apparatuses, including U and V. तो हम पहले अपना डायग्राम बनाएंगे, जो हमें दिया हुआ है ना, हम इसी में अपना बेसिकली इंक्लूड कर देंगे, ठीक है. वरना आप ऑब्वियसली चाहें तो आप सेपरेटली ड्रॉ करो, बट आई एम जस्ट गोना इंक्लूड इट इन दिस, ठीक है. पहले तो हमें सबसे पहले अपना एक्सेस ड्रॉ करना होगा. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट गोना पुट दिस आउट बिकॉज वी नीड कलर्स, बिकॉज आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन. ओके, पहले तो हम अपना एक्सेस ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल लेंस के सेंटर से होता है, ठीक है. ये हमारा एक्सेस आ गया, ठीक है. ये हमारा बिल्कुल, फिर हमने लेंस का सेंटर बना दिया. ये देखो, ये हमारा लेंस का सेंटर आ गया. ये क्यों ऐसा हो गया? नेक्स्ट ओवर कैन ड्रॉ, हम अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल our illuminated object, let's just say that this is our object, ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और हम दिखाएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन हमारी लेंस पे आ रही है और हमारी लेंस ने इसको कन्वर्ज किया और यहाँ आ गए. ये हमारा हमें नज़र आ रहा है कि फोकल लेंथ फोकल पॉइंट दिखाएंगे. फोकल पॉइंट, प्लीज़ डू नॉट जस्ट राइट एफ. आपको डायग्राम दिखाना, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है. एंड आई एम गोना शो फोकल लेंथ एज वेल.
ये हमारी है फोकल लेंथ, ठीक है। अब हमें यू और वी भी दिखाना है, तो हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑब्जेक्ट से हमारे लेंस के बिल्कुल सेंटर को टच करके स्ट्रेट जा रही है, तो ये यहाँ एग्जैक्ट, तो यहाँ हमारा इमेज बन गया। इमेज, तो अब हमारा यू था द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, आई नो माई लाइन इज अ लिटिल crooked बट इट्स फाइन, ये हमारा यू है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज ऑन द स्क्रीन, तो ये हमारी वी आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्वियसली इमेज हमारी स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब आपको अपना ऑब्जेक्ट, आप चाहें तो कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन भी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, स्क्रीन, बिकॉज वी शुड बेसिकली यूज़ all the things that are written down in the apparatuses that we will actually need, ठीक है। आप यहाँ पर अपना मीटर रूलर भी ड्रॉ कर लो, वैसे you don't need to draw these things. What you actually need to draw is the lens, the screen and the image and the object. ये चीज़ आपको दिखानी है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ because I don't know, just to give you a perspective कि किस तरह चीज़ें होंगी, ठीक है। हमने अपना डायग्राम ड्रॉ कर दिया। Briefly explain how you would carry out the investigation including the measurements you would take. तो पहले हम अपना method explain करेंगे, investigation including the measurements। तो पहले हम अपना method लिखेंगे, method, ठीक है। पहले तो we're gonna use different use lenses of different thicknesses, एक मिनट, ऊपर लिखा हुआ है explain how you would, हाँ वो अलग से पूछा हुआ है how you would determine the thickness of each lens, ठीक है, उसका हम बाद में करेंगे, पहले हम मेथड लिख रहे हैं। यूज़ lenses of different thicknesses, ठीक है, एंड फिर हम ये लिखेंगे measure या record different U and V values for different lens thicknesses and record T itself, which is the thickness itself, because आपको obviously बताना है कि हम comparison किस तरह करेंगे, हम देखेंगे thickness की value बढ़ रही है तो इसकी value बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, ठीक है। हमें ये भी बताना है कि हम इसमें, क्योंकि हमारा मेथड है ना मेजरमेंट्स का बता रहे हैं, तो हमें ये भी बात समझानी पड़ेगी कि हम एक शार्प इमेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे स्क्रीन पे। तो हम लिखेंगे मूव, आइदर हम ये लिख देंगे स्क्रीन, मैं स्क्रीन लिख रही हूँ, इट्स द ईजीएस्ट, मूव स्क्रीन टू क्या था, मूव स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है, मूव स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ये हमारा मेथड हो। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है कि let me just explain briefly how you would determine the thickness of each lens. You may draw a diagram if it helps your explanation. अब लेंस की थिकनेस हम कैसे मेजर करेंगे, हम जो हमें ऊपर वुडन ब्लॉक्स दिए हुए ना उसको हम यूज़ करेंगे और उससे हम थिकनेस मेजर करेंगे, ठीक है, it will be much easier. तो आप let me just draw a diagram. For example ये आपकी लेंस है, आपको उसकी थिकनेस मेजर करनी है, जो आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं their length, their longest length or the longest side is longer than the diameter of the lens. तो हम इन ब्लॉक्स को यूँ प्लेस करेंगे दोनों तरफ, एक आगे और एक पीछे भी, एक आगे और एक हम पीछे भी प्लेस करेंगे, ठीक है, एंड यू आर गोना ऑब्वियसली मेजर, ठीक है। मतलब आपने इसको, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, मतलब ये बेसिकली जो लेंस थोड़ी नीचे आती है कि एग्जैक्ट सेंटर में, और दोनों जो साइड्स हैं इसको हम मार्क ऑफ करते हैं हमारे वुड पे, और हम यूज़ करते हैं अपना रूलर और उससे हम लेंस की थिकनेस मेजर करते हैं, ठीक है, बेसिकली।
सो हम लिखेंगे just write use blocks on either, ये क्या हो रहा है, either sides of the lens. अब चाहे तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं. And measure distance of thickness of lens. ठीक है. लास्ट वन से पूछा हुआ है draw a suitable table with column headings to show how you would display your readings. हमें obviously इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन की या किसी भी चीज़ की, फोकल लेंथ की, बस हम वो लिख सकते हैं. तो पहले तो हमारे पास हमारा जो टेबल होगा उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास थिकनेस होगी और ये हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में. नेक्स्ट हमारे पास होगा u इन ऑल्सो सेंटीमीटर्स. फिर हमारे पास होगा v इन सेंटीमीटर्स. हमारे पास होगा फोकल लेंथ f इन सेंटीमीटर्स. समझ आ गया आपको? ये सब चीज़ें हमने लिखी. फोकल लेंथ ऑब्वियसली फिर हम दोनों को रिलेट करेंगे, थिकनेस एंड फोकल लेंथ. अब हमसे पूछा हुआ नहीं है कि आप यूजुअली आपसे इस तरीके के उसमें पूछा जाता है एक्सप्लेन हाउ यूज़ दीज रीडिंग्स टू कम टू कंक्लूजन वगैरह. हमसे पूछा हुआ नहीं. पर अगर आपसे पूछते आई एम जस्ट बीइंग कॉशियस, तो आप लिख सकते थे यूज़ योर रीडिंग्स ऑफ थिकनेस एंड फोकल लेंथ to plot a graph so you could find a relationship between the two. That's in case आपसे पूछा जाता तो आप बता दें कि आप ये values यूज़ करके ग्लास प्रूफ करते आपको नज़र आता है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, which we know it's a indirect relationship. कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी कम फोकल लेंथ होगी और उतनी ज़्यादा हमारी पावर होगी लेंस की. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग टुडे. एंड अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है प्लीज़ मेंशन डाउन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.